discussion, we have discussed the different stages of the trial. And first of all, we have discussed the first stage, which is the pre-admission, pre-institution stage, that is the drafting of a plaint. And definitely, drafting of plaint is always done by the advocates while sitting in the chambers. आज का जो लेक्चर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें आपने जो है ना वो चीज़ें नोट करनी है because till apex Supreme Court of Pakistan the same plaint is being read for grant or disallowing the relief claimed by you. We come to the Order 7 Rule 1 and then we will see that what provisions relates to those requirements which are given under Order 7 Rule 1. Order 7 Rule 1 says that following will be the requirements of a plaint. Anybody you can read the Order 7 Rule 1? सब लोग जो है ना अपनी सीपीसी साथ लाया करें मार्कर Order 7 Rule 1. What is Order 7 Rule 1? Particulars to be contained in plaints. Particulars to be contained in the plaint. First, Name of the court. name of the court. Name of the Court. court. Number 2, The name, description and place of residence of the plaintiff. name. आगे क्या है? Description Description and place of residence. and place of residence of Parties. So plaintiff and Parties. defendant. number 2, 3. Whether the plaintiff or defendant is minor or a person of unsound mind. Special narration in case of minor Unsound. or unsound mind. Next, Facts constituting cause of action. facts of the case. Next, Facts showing the court has jurisdiction. jurisdiction facts. Jurisdictional facts. Next, Relief which the plaintiff claims. relief. Next, Where the plaintiff has allowed a set off or relinquish a portion of his claim, the amount so allowed or set off relinquished portion. or relinquished portion. Next, Statement of the value of subject matter. valuation. जी sir. And Next. court fees sir. Court fee. Next, And these are the 9 requirements for a plaint. Now we will deal one by one. Name of court and jurisdiction shall be dealt jointly. Because while dealing with this, you will only mention the name of the court on the head of your plaint. But while writing this, that in which court the plaint is being presented, you have to see that which court has the jurisdiction to entertain the matter. No, jurisdiction is of 2 types. One, pecuniary and territorial. In both cases, while writing the name of the court, you have to see that in which court you have to file the plaint. You have to present the plaint. Pecuniary jurisdiction के बारे में section 6 है. Section 6 जो before amendment था, that was that the pecuniary jurisdiction shall be as per the jurisdiction given in the West Pakistan Civil Code Ordinance 1962. But for the Islamabad, now it has been changed.
it has given the two peculiar jurisdictions of two courts. First of all, the suits subject matter of which is of above than 50 million, and second is of less than 50 million. 6.1 says that a case which has the peculiar the value of the subject matter is less than 50 million shall be filed in the civil court, and more than 50 million shall be filed before the district court. And this section is silent about the value of subject matter. Exact value is 50 million. This is lacuna on the part of the legislature. वो किसी टाइम उसको ठीक करना चाहिए. So first of all, you have to see while writing the name of the court that in which court you have to file, whether it is a district court, whether it is a civil court. Now you have decided that this is a case which is to be one civil court, then you have to decide then in which court you have to file. Then the territorial jurisdiction is most important. You have to decide that whether it is to be filed at Rawalpindi, whether it is to file with the east, whether it is to be filed in the west, whatsoever. This is the territorial jurisdiction. It relates to the first requirement, that is the name of the court, and the jurisdiction, that is one and the same thing. While dealing with the territorial jurisdiction, what sections are important? Any person? 5 sections हैं CPC के which deals with the territorial jurisdiction of the court. 16 to 20. 16 to 20. 16 to 20 gives the forum where you have to forum as with respect to the territorial jurisdiction where you have to present your plaint. Section 16 deals with the cases regarding immovable property. And it says that the cases regarding the immovable property shall be filed where the immovable property situates. इसमें एक सी की एक्सेप्शन ज़रूर है जिसमें फोरक्लियर और रिडेम्पशन का है, तो उन्होंने कहा जहाँ के वो एक्चुअल रेस्टेन में हो तो वहाँ भी हो सकता है, लेकिन एज ए जर्नल इमूवेबल प्रॉपर्टी के तमाम जो केसेस हैं वो उस कोर्ट में होते हैं जिस कोर्ट में वो प्रॉपर्टी सिचुएट करती है. 17 डीज बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह कि दैट कोर्ट दैट प्रॉपर्टी मस्ट सिचुएट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान के किसी भी इलाके में हो तो वो उस कोर्ट की जुरिसडिक्शन में है. अब सेक्शन 16 इज ऑलवेज रेड विद सेक्शन 17. Section 17 says that when a property is situated in different courts, in the territorial jurisdiction of different courts, then any court in which any portion, substantial portion का लफ्ज़ नहीं है, any portion of that property situates has the jurisdiction to it and that suit. First of all, what may be the example of this? इसकी कोई बंदा मिसाल दे. कैसे एक प्रॉपर्टी 2 जिलों में हो सकती है, 2 कोर्ट की टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में हो सकती है? सर बॉर्डर पे आता है. नो, मुख्तलिफ शहरों में. मुख्तलिफ शहरों में. अब मुख्तलिफ शहरों में कैसे प्रॉपर्टी हो सकती है? जैसे इस्लामाबाद और पिंडी टचे एक प्रॉपर्टी कैसे प्रॉपर्टी एक पिंडी और इस्लामाबाद दोनों में हो सकती है? ये चरागा वाला सैदा वगैरह हो. आगे जी. ये जो सोसाइटीज़ बनी हुई हैं सर मुख्तलिफ नामों से, मुख्तलिफ नामों से बनी हुई, ठीक है. ये भी इट इज़ अ गुड एग्जांपल. मसलन आपकी जो ये मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव सोसाइटी का B17 है, इसमें कुछ हिस्सा जो है ना वो रावलपिंडी में है, कुछ इस्लामाबाद में. इसकी और एग्जांपल, इसकी एक एग्जांपल ये है कि एक शख्स फौत होता है A, अब उसकी एक प्रॉपर्टी B, एक प्रॉपर्टी जो है वो मरी में है, एक इस्लामाबाद में है, एक रावलपिंडी में है, एक लाहौर में है और एक कराची में है. अब दिस प्रॉपर्टी इज अ जाइंट प्रॉपर्टी. इट इज़ अ जाइंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द लीगल हेयर्स ऑफ A.
Not it is a single property. It is a single property, though it consists of more than one properties. But for partition purpose, this is a one property, which is jointly owned by. seized. अब इसकी प्रॉपर्टीज की बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो कुछ प्रॉपर्टी ए में है लेकिन तमाम का राइट बराबर है। तो एनी कोड इन विच इन whose jurisdiction any portion of the property situates has the jurisdiction to entertain the matter, meaning thereby if one marla land is in at Rawalpindi in Murree or Rawalpindi and 100 canal is land in Lahore or Kasoor, you can file a civil suit for partition of that property before the civil court of Murree where any portion of that property situates. But in that eventuality, all the properties which may be included must within the territorial jurisdiction of Pakistan. बियॉन्ड पाकिस्तान, क्योंकि वो 16 को मिला के पढ़ेंगे, 16 में वर्ड है कि पाकिस्तान में जो है, तो इस पर एक जजमेंट नोट फरमा लें। जजमेंट इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ कि आपको ये सहूलत होगी इसको समझने में। PLD in 2016 Supreme Court 174. In this case, there was a case when a person dies and his one property was in Lahore, in Rawalpindi, in Karachi, and some property was in UK. Civil suit was filed at Lahore, claiming the partition of all the property, including the property which was in UK. The matter was decreed. High Court decision करते हुए जब Supreme Court तक पहुंचे तो उन्होंने कहा कि though that is a property, that is a joint property, but as per section 16 and 17, that is not the suit regarding that property is not entertainable by any court in Pakistan. Hence, had the property been any part of Pakistan, then that could be included at Lahore. But as that property is beyond the limits, then this property cannot be included. So that property must be within the territorial jurisdiction. So 17 is the exception of 16, or rather exception नहीं है, उसकी enlargement है कि 16 says that in which court, in the court in which in the territorial jurisdiction of which the property situates, and 17 when it is in two courts, any court has the jurisdiction. Now section 18, what section 18 says, when you are uncertain about the jurisdiction of a court, then you can file a civil suit before any of the court, and that court, after recording the statement of his jurisdiction regarding, assumes the jurisdiction, and after the assumption, that court has the jurisdiction irrespective that whether that court has or not the jurisdiction. ये वो सहदे वाली बात है कि आपको नहीं पता कि ये रावलपिंडी में है, ये इस्लामाबाद में है. You, while drafting the plaint, you write a sentence that as per my view, this property is situated in Islamabad and that shall be filed in a court of Islamabad, but before proceeding further, court must record the statement wording that court should satisfy itself that this court has the jurisdiction, and otherwise the plaint shall be returned. Up 19 says, section 19 says that relates to movable and personal wrongs. Movable or personal wrongs. And it says that it can be filed at any place where the defendant resides, or any of the defendant resides, or cause of action wholly or properly. But इसमें ये है कि where the wrong has been done, when wrong is done, वो cause of action वाला 20 में wrong has been done. आपको किसी ने मारपीट की इस्लामाबाद में और he is of लाहौर का रहने वाला है, तो आप लाहौर में भी दावा दायर कर सकते हैं डिफेंडेंट, और इस्लामाबाद में जहाँ उसने वो रॉन्ग किया है. अब इसमें मैंने एक देखी है बहुत गलतुलाम है कि लिखते हैं जी एज द प्लेंटिफ resides in Islamabad, then this court has the jurisdiction to attend the matter. It is totally wrong. To get the jurisdiction,
To claim the jurisdiction of a court, residence of defendant is material. Resident of plaintiff is material only in the case of family court, and that too only for the maintenance allowance and for dissolution of marriage. It says that it can be filed at any place where plaintiff voluntarily resides. Under the CPC, either you must claim that wrong is done here, और अगर सेक्शन 20 को पढ़ें तो सेक्शन 20 says that other cause of action wholly or partly been arisen that court or any defendant or any one of the defendant must reside. एक केस में 3 डिफेंडेंट्स हैं, तो जहाँ एक रहता है वहाँ आप दावा दायर कर सकते हैं. प्लेंटिफ की रेजिडेंस किसी में होना doesn't give the jurisdiction to that court on the ground that plaintiff resides. Plaintiff resides कर सकता है, plaintiff इस्लामाबाद में रहता है, लेकिन on this basis you cannot claim the jurisdiction unless you write that such cause of action. मसलन एक एग्रीमेंट, इसमें एक जजमेंट नोट फरमाएं कि इवन इमूवेबल प्रॉपर्टीज के बारे में भी अगर आपने सिर्फ सूट करना हो डैमेजेस का और उसके में कोई और चीज़ें हों तो वो दैट इज गॉन बाय सेक्शन 20 एंड नॉट बाय सेक्शन 16. एंड दिस इज माइंस का केस है 2018 SCMR 2121 2018 SCMR 2121. This is a judgment which says that whether this, अब माइंस तो एक जगह होती है, लेकिन अगर माइंस की प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट है तो इस तरीके से वो आप कहीं भी कर सकते हैं जहाँ उसका आपने, वो पिशावर में उन्होंने माइंस का ठेका दिया तो उन्होंने कहा माइंस जिधर भी है आप इधर उसका दावा कर सकते हैं. दूसरी, आप if there is a suit for specific performance, you want to file a suit for specific performance and agreement, that is to be filed where the property situates. रावलपिंडी की प्रॉपर्टी है तो रावलपिंडी में होगा, इस्लामाबाद की है तो इस्लामाबाद में होगा. बट इफ यू वांट टू क्लेम ओनली कंपनसेशन on the basis of that agreement, if you want to claim the compensation that this agreement has been breached, you are not interested in specific performance, you are claiming the damages on the basis of that contract or return of only earnest money, you can file a suit where cause of action has been arisen or where defendant or any of the defendants resides. अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है कि any of the defendants कौन से होते हैं. एनी ऑफ द डिफेंडेंट्स में ज़रूरी नहीं कि आप किसी को सिर्फ इसलिए डिफेंडेंट रख दें कि इस कोर्ट की जुरिसडिक्शन है. उस डिफेंडेंट के खिलाफ आपको सारा रिलीफ या कोई रिलीफ क्लेम किया हो और वो बनता हो, आप किसी को वैसे पार्टी बना दें, आप किसी को वैसे पार्टी बना दें कि जुरिसडिक्शन है और उसके खिलाफ आप रिलीफ क्लेम ना करें सिर्फ जुरिसडिक्शन देने के लिए, तो इट डजंट गिव जुरिसडिक्शन टू दैट कोर्ट. एंड जुरिसडिक्शन के बारे में लॉ ये है कि जुरिसडिक्शन इज कन्फर्ड बाय द स्टैट्यूट. इट कैन नॉट बी कन्फर्ड बाय द कंसेंट ऑफ द पार्टीज. आप कंसेंट भी दे दें कि रावलपिंडी का दावा है हम यहाँ दायर करते हैं, डिफेंडेंट उस पर इतराज़ भी ना करे, इवन देन दैट कोर्ट डजंट हैव द जुरिसडिक्शन इफ अदरवाइज डोंट हैव. इसमें जो एक एक्सेप्शंस हैं और उस पर भी जजमेंट्स हैं कि in some contracts it is always written that in case of dispute civil code of such and such will have the jurisdiction. ज़्यादातर जो इस्लामाबाद में जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो करती हैं तो वो लिख देती हैं. वो जब लिख देती हैं तो वो जुरिसडिक्शन कन्फर इसलिए नहीं हो रही होती कि उनकी मर्जी है, वो इसलिए हो रही होती है कि वैसे भी क्योंकि वो इस्लामाबाद में एग्रीमेंट हो रहा होता है तो इस्लामाबाद की, अब वो अगर प्रोजेक्ट है लाहौर का और इस्लामाबाद में एग्रीमेंट हुआ है तो काज ऑफ एक्शन जो है वो इस्लामाबाद में भी रिजन होता है, इस्लामाबाद में भी अराइज होता है क्योंकि यहाँ वो एग्रीमेंट जिसकी ब्रीच हुई है वो हुआ है और उसका एग्जीक्यूट जो हुआ है होली और पार्टली यहाँ हुआ है, होली वहाँ हुआ है जहाँ इसको ब्रीच हुआ है. तो उसमें जुरिसडिक्शन क्योंकि इस कोर्ट की भी होती है और उस कोर्ट की भी होती है, तो जब पार्टीज, ये जो कंट्रैक्ट है दैट इज बाइंडिंग, कि जब आप खुद जुरिसडिक्शन उन दो में से किसी एक कोर्ट की, जिन दोनों की जुरिसडिक्शन हो, तो दैट कंट्रैक्ट इज बाइंडिंग. बट यू कांट से कि आपने इस्लामाबाद में एग्रीमेंट किया है, लाहौर में उसकी एग्जीक्यूशन हो गई है तो आप कहें जी कि इसकी जुरिसडिक्शन है वो रावलपिंडी में या पेशावर में होगी.
उन दोनों में से किसी कोर्ट को तो आप चूज कर सकते हैं जिसकी वैसे जुरिस्डिक्शन है, लेकिन किसी ऐसी कोर्ट को चूज नहीं कर सकते जिसकी वैसे जुरिस्डिक्शन नहीं है। अब इसमें एक स्पेसिफिक प्रोविजन और भी है, वो इस्लामाबाद के हवाले से नहीं है, लेकिन वो बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें हवाले से है। सेक्शन 24, Section 24 of West Pakistan Civil Code Ordinance 1962 says that a case in which any officer or office or a public servant is a party in an official capacity, then case shall be heard at district headquarters by a civil judge having unlimited jurisdiction. Having अनलिमिटेड, क्योंकि यहाँ तहसील है नहीं इसलिए यहाँ ये ज़्यादा नहीं है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, मसलन आपने कलर सईदा का एक केस है और कलर सईदा की प्रॉपर्टी है और उसमें आपने रिलीफ क्लेम करना है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भी पार्टी बनाना है, तहसीलदार को भी प्रॉपर्टी बनाना है, तो आप वो दावा दो सिविल जज इज सिटिंग देयर बट यू विल फाइल दैट सूट at district headquarters and that shall be heard by a civil judge having the unlimited jurisdiction. वो अनलिमिटेड जुरिस्डिक्शन सिविल जज फर्स्ट क्लास की है, यहाँ जब आएंगे तो फिर डिस्ट्रिक्ट जज की अब हो गई है। सिविल जज फर्स्ट क्लास की अब अनलिमिटेड नहीं है, उसकी दैट हैज बीन कन्फाइंड टू लेस देन 50 मिलियन। तो आपने ये जो फर्स्ट है इसको डिसाइड करते हुए जो आपने सेक्शन जेन में रखनी है वो क्या है, 16 to 20 and 24 to 24 of West Pakistan Civil Code Ordinance 96. And what would be the effect of presentation of a plaint in a court having no territorial or pecuniary jurisdiction? Rejection. Return No, of plaint. return. Plaint shall be returned under order 7 rule 10. No, what are the remedies against that return? Where should be a proper या तो आप उसकी बात मान के उधर ले जाएं या उसके खिलाफ ऑर्डर के खिलाफ, दैट इज एन अपीलेबल ऑर्डर, दैट इज एन अपीलेबल ऑर्डर, और उसके खिलाफ अपील दायर कर, दोनों आप कर सकते हैं। इफ यू आर ऑफ द व्यू के अदालत का ये ऑर्डर गलत है, मेरी जुरिस्डिक्शन यही बनती है, उस ऑर्डर को चैलेंज कर दें। अगर आप समझते हैं कि नहीं कोर्ट की बात ठीक है, वो प्लेंट लें और दूसरी कोर्ट में प्रेजेंट कर दें। इज इट क्लियर? दिस वाज द फर्स्ट and fifth subject of the fifth requirement of a plaint. No parties to the suit. It is the most important. Parties to the suit. You have to write the name of the parties as the plaintiffs and defendants. Plaintiff एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, defendant एक भी हो सकते हैं और defendants एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। Order 1 Rule 1 and Order 1 Rule 2 or Order 1 Rule 4 deals with the parties. Who can be joined as the plaintiff? Who can be joined as the defendants? कोई बताएगा जी किन को आप इकट्ठा प्लेंटिफ बना सकते हैं? मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं। ए ने बी से मुआहदा किया कोई चीज खरीदने का, उसी बी ने सी से भी एक मुआहदा किया कोई चीज बेचने का, वही चीज बेचने का। क्या बी और सी, ए और सी जो है वो दोनों एक केस में प्लेंटिफ बन सकते हैं? अगर ट्रांजैक्शंस डिफरेंट है तो नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? उनका ट्रांजैक्शन ही नहीं, सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन एक नहीं है। सीरीज ऑफ डिफेंडेंट भी एक है, सब्जेक्ट मैटर भी एक है, लेकिन सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन एक नहीं है। उसका अपना एग्रीमेंट है, इसका अपना एग्रीमेंट है। बट इसी को मिसाल को अगर दें कि ए ने वो चीज़, बी ने वो चीज़ ए को बेच दी, ए ने वही चीज़ सी को बेच दी, अब कर सकते हैं ए और सी मिलके? कर सकते हैं, बिकॉज सीरीज इज सेम। ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल अनदर एग्रीमेंट टू सेल वाज साइंड। अब दोनों मिलके दोनों एग्रीमेंट टू सेल, एक में सी पार्टी है एक में नहीं है, लेकिन दोनों मिलके उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, बिकॉज द राइट ऑफ सी इज डिपेंडेंट अपॉन द राइट ऑफ ए। जब तक दोनों मिलके उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मांगेंगे
तो उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। तो अब दोनों मिलके उस दोनों एग्रीमेंट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगेंगे। हमारे इधर इस्लामाबाद में यही बहुत बड़ा फ्लॉ है। ए बी से के साथ एग्रीमेंट करता है, बी सी के साथ कर देता है, सी डी के साथ कर देता है, वो सारे मिला के ना उनको डिफेंडेंट रख के बना देते हैं। भाई फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो कराएं। उसकी एक ही एक्सेप्शन है 2013 SCMR 146, इसमें उसकी एक्सेप्शन दी हुई है कि जब एग्रीमेंट टू एग्रीमेंट हो तो उसकी कैसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होती है, विच सेज दैट व्हेन दैट एग्रीमेंट इज कपल्ड विद द पावर ऑफ अटॉर्नी, कि वो उसके साथ पावर ऑफ अटॉर्नी भी दे दे कि आगे बेच सकता है। तो उसके बाद अगर वो बेचेगा तो वो, क्योंकि वो एज ए उससे परचेजर नहीं खरीद रहा, वो एज ए अटॉर्नी भी खरीद रहा है, तो ऐसे में उन्होंने कहा कि वो दैट कैन बी, वो इसमें 3 से निसार अफजल केस है, ये ब्लू एरिया की है प्रॉपर्टी का। तो इसमें उन्होंने कहा कि अगर उसमें ये करना, क्योंकि उसने सिर्फ एग्रीमेंट नहीं किया बल्कि उसके साथ वो राइट भी दे दिया है, तो ये कर सकते हैं। अब ये प्लेंटिफ्स हैं, तो बड़ा ये माइन्यूट है, ये आप चीज़ें खुद प्रैक्टिस में देखेंगे, लेकिन ये आपने चीज़ें देखनी है। बाद में आप किसी, अब दावे में आप शुफे का दावा है, शुफे के दावे में आप किसी ऐसे बंदे को प्लेंटिफ बना लेते हैं जिसका वो राइट ही नहीं है, तो वो फैटल हो जाता है, वो आपका फैटल हो जाएगा। इस तरीके से आप किसी को शुफे के दावे में कोई जिसने जगह खरीदी हुई है उसको डिफेंडेंट नहीं बनाते। वैसे ऑर्डर 1 रूल 9 सेज क्या कहते हैं कि मेयर मिस जेंडर एंड नॉन जेंडर ऑफ प्रॉपर्टी डजंट इफेक्ट, it cannot be a ground for rejection or plaint or for dismissal of suit because remedy is under order 1 rule 10 of CPC। 110 में उसकी रेमेडी मौजूद है, 110 में उसकी हम रेमेडी कर सकते हैं, कोर्ट खुद भी कर सकती है और आपकी एप्लीकेशन भी हो सकती है। लेकिन जब इस किस्म की आप गलती कर देंगे जिस तरह की शुफे की मैंने बताई है, तो फिर वो गलती ठीक भी नहीं हो सकती। अब आपने एक बंदे को शुफे का नोटिस ही नहीं भेजा हुआ, उसको आपने पार्टी नहीं बनाया हुआ, तो वो शुफा आपका पार्शियल में चला जाएगा और वो खारिज हो जाएगा। तो पार्टीज टू द सूट, अब पार्टीज में एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। पार्टीज में आपने ये देखना है कि आपने वो नेचुरल पर्सन को पार्टी बनाना है, नेचुरल पर्सन की तरफ से दावा करना है या लीगल पर्सन की तरफ से दावा करना है। तो अगर नेचुरल पर्सन की तरफ से करना है तो वो तो वेरी सिंपल, नेचुरल पर्सन है वो केस दायर कर देगा। अब नेचुरल पर्सन में भी 2 किस्म के बंदे हो सकते हैं, वो माइनर हो सकते हैं, वो माइनर हो सकते हैं, उसका एक राइट है। अब उन्हें माइनर की तरफ से अपने दावा दायर करना है, तो माइनर तो आपकी प्लेट जो है वो साइन नहीं करेगा, तो वो उसके साथ ये भी आप जो है स्पेशल जो है कि नरेशन रिगार्डिंग माइनर अनसाउंड माइंड। अगर आपने माइनर की तरफ से करना है तो फिर ऑर्डर 32 रूल 1 है। ऑर्डर 32 रूल 1 इज इंपॉर्टेंट कि आप थ्रू नेक्स्ट फ्रेंड करेंगे, आप थ्रू नेक्स्ट फ्रेंड करेंगे। और अगर आपने डिफेंडेंट को बनाना है तो आपने पहले में लिखना है कि फलां बंदा माइनर है और उसको ही इज बीइंग सूड थ्रू हिज फादर विच इज अ गार्डियन एड लिटम। अगर वो डिफेंडेंट है तो उसका वर्ड है गार्डियन एड लिटम, और आप उसको अगर प्लेंटिफ पे बना रहे हैं तो नेक्स्ट फ्रेंड। और लॉ से कि जिस माइनर का गार्डियन मुकर्रर नहीं किया आपने, तो फिर कोर्ट मुकर्रर करेगी, वो उसका रीडर भी हो सकता है। ये आगे लंबा सब्जेक्ट है, बहरहाल आपने ये देखना है। अब जो अनसाउंड माइंड का होता है शख्स, अनसाउंड माइंड के बारे में एक बड़ा गलतफहमी है कि उसका भी गार्डियनशिप सर्टिफिकेट इशू कराने की लोग कोशिश कर रहे हैं। गार्डियनशिप उसका नहीं होता, गार्डियनशिप माइनर का होता है। जो अनसाउंड माइंड वाला है उसका क्या होता है जी? डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट क्या होता है, कोई बदलता है। मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस 2002 2001 और 2 मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस है। आप कहता उसकी दरख्वास्त दे के डिस्ट्रिक्ट जज से उसका गार्डियन मुकर्रर कराएं और वो अलहदा होता है। आप मुझे भी सुने थोड़ा सा पीछे सो जाएं ताकि मेरा किसी ऐसे बंदे को आगे बिठा दें जो सो ना रहा हो, ठीक है। मुझे तकरीर करने का कोई शौक नहीं है, मेरे पास ये 30-35 बंदे होते हैं रोज़ तकरीर करने के लिए। मैं आप लोगों के लिए आया हूँ, ठीक है। आप कोई चीज़ नोट नहीं फरमा रहे, आप नोट फरमा नहीं रहे, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नोट फरमाएं। तो उसके तहत मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस के तहत उसको करेंगे। इसी तरह अगर डिफेंडेंट है तो उसको भी गार्डियन एड लिटम करेंगे।
इसमें और एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये तो लीगल पर्सन, दो नेचुरल पर्सन हो गए, माइनर और नेचुरल पर्सन। लेकिन माइनर अगर जब नेचुरल पर्सन आ जाता है तो उसका भी आपको गार्डियन अपना नेक्स्ट फ्रेंड बनाना पड़ेगा। अब आज नेचुरल पर्सन नहीं है, आपने एक दावा करना है फर्म की तरफ से या कारपोरेशन की तरफ से, तो उसमें क्या आप लिखेंगे फिर? लीगल जी, लीगल लीगल पर्सन का नाम लिखेंगे और इस पे फिर आपको पढ़ना पड़ेगा ऑर्डर 29। ऑर्डर 29 रूल 1 इज इंपॉर्टेंट, विच सेज दैट हु विल साइन दैट डीड, और उसको किस तरीके से बनाया जाएगा। बड़ा लिखते हैं जी CEO ऑफ लॉन्ग कंपनी, नो, द करेक्ट नरेशन इज दैट सच एंड सच कंपनी थ्रू CEO, एंड पार्ट उसके पैरा नंबर 1 में आपने लिखना है दैट द प्लेंटिफ इज द registered in the company, registered under the company's ordinance, hence being legal person it can sue and to be sued. Such and such person is authorized through board of directors resolution or article of association में दोनों में हो सकता है to sign the pleading, sign and verify the pleading, hence the instant suit is being filed on behalf of the plaintiff company through such and such person. लेकिन बहुत सारे केसेस मैंने देखा है कि उस बंदे को पहले लिख देते हैं, कंपनी को बाद में लिख देते हैं। दैट सूट इज ऑलवेज ट्रीटेड फाइल्ड बाय दैट पर्सन एज ए CEO ऑफ द कंपनी, नॉट बाय द कंपनी। कंपनी ने बनना है तो कंपनी जो है वो थ्रू CEO करेगी। इस तरह फर्म है, अब फर्म इज आल्सो अ लीगल पर्सन, लेकिन उसका अपना रूल है, वो ऑर्डर 30 में आ जाता है। ऑर्डर 30 में आ जाता है। Order 30 says that firm can sue and to be sued in the name of firm through its partner, any of the partner, क्योंकि उसमें हर पार्टनर दूसरे का एजेंट होता है, हर पार्टनर दूसरे का एजेंट होता है। जो कंपनी है वो कंपनी ऑर्डिनेंस के तहत उसकी लिमिटेड होती है, उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लाजमी होता है, इसलिए उसकी रेजोल्यूशन चाहिए होती है। लेकिन फर्म में हर जो है उसमें अब उसके आगे फिर रूल्स हैं कि किस तरीके से उसकी होगी, और ये 6 सेक्शन आई थिंक 20 या 19 की जो एग्जाम्पल है उसमें लिखा हुआ है कि कॉरपोरेशन का जहाँ आपका सब ऑफिस होगा वहाँ उसकी वो रेजिडेंस या वो उसका जो बिजनेस है वो शुमार किया जाएगा, और वहाँ जो एजेंट होगा वो उसका एजेंट फॉर द पर्पज ऑफ सर्विस, फॉर द पर्पज ऑफ सर्विस शुमार किया जाएगा। साइन वही कर सकता है जिसको ऑथराइजेशन हो, लेकिन आप समन उस पर सर्व करा सकते हैं पर जो उधर वो एजेंट होगा। तो ऑर्डर 30 में एक दूसरी भी है, वो होता है सोल प्रोप्राइटर कंसर्न, कि एक शख्स वो न फर्म है न कारपोरेशन है, बल्कि वो एक ट्रेड नेम से, जिस तरह मैं अब वाजिद मुगल आस्ट्रेट के नाम से कर रहा हूँ, तो वाजिद मुगल मेरा अपना नाम है, लेकिन इसी नाम से मैं एक काम कर रहा हूँ। जब मैं अपने बेटे के नाम से काम कर रहा हूँ, कोई शख्स शाहिद इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से काम कर रहा है, अब शाहिद इलेक्ट्रॉनिक्स एक रजिस्टर्ड फर्म नहीं है, तो इसके बारे में ऑर्डर 30 सेज दैट all the rules regarding the firm shall be applicable to that sole proprietor concern, except कि वो फर्म अपने बिजनेस नेम से सू नहीं करेगा, वो सू अपने नाम से ही करेगा, और उसमें क्या होगा, सच एंड सच सोल प्रोप्राइटर ऑफ सच एंड सच। कॉर्पोरेशन भी अपने नाम से करेगी, फर्म भी अपने नाम से करेगी, लेकिन अगर सोल प्रोप्राइटर कंसर्न है तो फिर वो अपने नेचुरल नेम से करेगा, नेचुरल नेम से करेगा। इज इट क्लियर? ये पार्टीज के हद तक है। अब इसके बाद आपका सिलेक्शन आती है क्या, सूट कौन सा करना है, सूट कौन सा, डिस्क्रिप्शन। अब इसमें ये बड़ी लंबी बहस है, चेक करके आपने डिसाइड करना होता है जब आपने जी एक चीज़ जो विच इज़ बीइंग मिस्ड, कि अगर आपने कोई वो पहले फिक्र में जिस तरह ये आपने लिखते हैं ऑर्डर 29 रूल 1 के तहत कि आपने ये दिस सूट इज बीइंग फाइल्ड सच एंड सच पर्सन, इफ दैट पर्सन इज नॉट प्रेजेंट then attorney who is having the power of attorney can cite the plaintiff, and that must be mentioned in the body of the plaintiff in para number 1 that plaintiff is abroad
and he has appointed. अब इसमें जो क्योंकि वो आगे मैं डिस्कस करने लगा था, आखिर में बता दिया, क्योंकि वो रिकग्नाइज एजेंट में दो किस्म के होते हैं। एक होता है रिकग्नाइज एजेंट, जो आपका रिकग्नाइज एजेंट होता है, और एक आपका प्लीडर होता है। ऑर्डर 3 रूल 1 रिकग्नाइज एजेंट को, और ऑर्डर 3 रूल 4 आपके प्लीडर्स को, आप यू आर द प्लीडर्स, उसको करता है। यू कैन प्लीड द केस। और रिकग्नाइज एजेंट कौन होगा, वो उसमें तारीफ दी गई है कि कौन कौन रिकग्नाइज एजेंट हो सकते हैं। तो इसकी नरेशन भी लाजमी है बॉडी ऑफ द प्लेन में। अब आपने बॉडी ऑफ प्लेन से पहले आपने हेडिंग ऑफ द सूट देखनी है। हेडिंग ऑफ सूट में आपने ये देखना है कि आपको कौन सा सूट दायर करना है। आप मुख्तलिफ ऑप्शन होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एन एग्रीमेंट यू कैन फाइल 3 or 4 सूट्स। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन फाइल सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, यू कैन फाइल सूट फॉर डैमेजेस। सर कुछ चीज अवेलेबल सर। सर यू कैन फाइल सूट फॉर, ये आपका ऑप्शन होता है जो आपने ऑप्शन पहले दिन डिसाइड करना है। इफ यू हैव फाइल्ड अ सूट फॉर damages for breach of that agreement, then you can't revert back for suit for specific performance of the agreement. But in addition, or as a alternative, you can claim the both the specific performance, or in addition or in alternative, you are claiming the damages along with the specific performance. लेकिन अगर आपने सिर्फ damages मांग लिए तो दोबारा you can't revert to that claim. अब जो उसके बाद है जी स्पेशल नरेशन आ गई है फैक्ट्स ऑफ द केस। अब फैक्ट्स ऑफ द केस के बारे में जो ऑर्डर 7 है, विच सेज, ये अब प्लीडिंग्स जो जनरली रिटन स्टेटमेंट को हम ऑर्डर 8 में पढ़ेंगे, लेकिन प्लीडिंग्स जनरली के बारे में है कि प्लीडिंग्स में क्या क्या शामिल है, प्लेन एंड रिटन स्टेटमेंट। और इसके बारे में एक जनरल रूल ये है कि इट शैल कंटेन द मटीरियल फैक्ट्स एंड नॉट द एविडेंस, बट देयर इज सम एक्सेप्शन। बात कैसे, पीर मोहम्मद केस है, PLD 2007 है, सुप्रीम कोर्ट 302, ये शुफे पे है। उन्होंने कहा जहाँ चीज़ें मटीरियल होंगी वहाँ एविडेंस भी होगा। इसी पे सारा ये केस इसी पे चला था। उन्होंने कहा डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ तलब मुआसरत नहीं दी हुई। उन्होंने कहा ज़रूरी नहीं है जी, आप ये तो शहादत है, हमने सिंपल कह दिया तलब मुआसरत हुई है तो हुई है। तो उन्होंने कहा नहीं, इसमें ये इस किस्म का है। उसको फिर वो लेके गए ऑर्डर 6 रूल 4 में। उन्होंने कहा जी कि ये फ्रॉड भी हो सकता है, मिस रिप्रेजेंटेशन भी हो सकती है। तो जस्ट टू सिक्योर उन्होंने इसी तरह कह दिया जिस तरह FIR है कि FIR में जिस तरह आपने टाइम, डेट एंड प्लेस देना होता है और वो चलता है आखिर। तो उन्होंने कहा ये भी, क्योंकि इस पर बाद में पैडिंग होती है, तो इसलिए पहले दिन आपने टाइम, डेट एंड प्लेस यू मस्ट मेंशन इन योर बॉडी ऑफ द प्लेन एज वेल एज अ नोटिस। इफ नॉट मेंशन यू कैन इम्प्रूव। आप बेशक उसको कहते रहे बाद में अपनी शहादत में। उन्होंने कहा ये आपने प्लेन में डील की हुई, तो दैट इज अ फैक्टर। अब इसमें ऑर्डर 6 रूल 4 इज इम्पोर्टेंट। It says that in case of misrepresentation, fraud, breach of trust, willful default, and undue influence, particular must be given. ये किस तरीके से फ्रॉड, किस तरीके से मिसरिप्रेजेंटेशन, किस तरीके से आपको पूरे पर्टिकुलर्स देने पड़ेंगे। उसके बाद है जी ऑर्डर 6 रूल 9। When contents of a document are material, it would be sufficient to briefly describe its effect without stating the whole content unless every detail is material. अगर आपने एक डॉक्यूमेंट है उसको मेंशन करना सिर्फ काफ़ी है तो मेंशन कर दे, उसके साथ डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, अनलेस
कि वो ज़रूरी हो, जिस तरीके से मैंने अभी नोटिस के बारे में कहा है कि नोटिस हालांकि तलब शाद है उसमें लिखा होता है, लेकिन उन्होंने कहा ये मटीरियल है, ये 7464 में लेके कि फ्रॉड भी हो सकता है, मिसरिप्रेजेंटेशन भी बाद में हो सकती है, तो इसलिए वो उसमें लेके गए हैं। अब आर्डर 6 रूल 10 कहता है कि malice, knowledge, fraudulent intention और any condition in mind is material। अब अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो फिर उसको भी आपने उसकी चीज़ें देनी है, इसके बगैर आप नहीं दे सकते। वो 64 सॉरी। अब आर्डर 7 में क्या इंपॉर्टेंट है? आर्डर 7 रूल 1 मैंने आपके सामने रखा, इसमें आप जो फैक्ट्स देने हैं उसमें आर्डर 7 रूल 2 है। आर्डर 7 रूल 2 says for suit of recovery of money state the precise amount, but if the money recoverable is liable to be calculated due to uncertain accounts then state approximate value। उसमें फिर आपको सिर्फ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इज सफिशिएंट अगर डेफिनेट नहीं है, वरना आपने उसको डेफिनेट अमाउंट देनी है। ये आगे रूल 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, ये आप उसको देख लें। इसमें भी आखिर में जो फैक्ट्स में ये चीज़ें देनी है, ये आप इसमें जो मटीरियल चीज़ें हैं वो मैंने इसमें लिख दी हैं। आर्डर 6 रूल 3, 4, 5 है, 6 है, 7 है, 9 है। आपको क्वेश्चन होगा तो मैं ले लेता हूँ, इसको आगे स्किप करके चलते हैं। इसकी भी एक रेमेडी है। अगर आप एक चीज़ है जो आपने नहीं करनी, एक चीज़ है जो अगर आप करते हैं और या नहीं करते तो उसको करेक्ट की जा सकती है। आपकी फैक्ट्स में एक चीज़ नहीं होनी चाहिए, वो एम्बिगुअस नहीं होनी चाहिए और स्कैंडलियस नहीं होनी चाहिए। अब Order 6 Rule 16 deals with striking of the pleadings, and Order 6 Rule 17 deals with the amendment in the pleadings. Order 6 Rule 16 में even you can claim the amendment in the pleadings of the other, और जनरली यही होता है, कोर्ट खुद भी कर सकती है और आप भी कर सकते हैं कि ये चीज़ें जो हैं ये चीज़ें इसमें प्रॉपर नहीं है और इसको प्रॉपर करना चाहिए। और कोर्ट, और इसकी जो आगे जो दी गई है वो है कि इसमें रूल्स में नहीं दी गई, लेकिन इफ अ कोर्ट पासिस एन ऑर्डर दैट दीज अंडर 6 रूल 16 अंडर रूल 6 रूल 16 दैट pleadings be amended and you fail, then consequence will be that your suit shall be failed due to non-compliance of the order which is necessary, compliance of which is necessary for the further proceeding. But you can claim Order 6 Rule 17, you can claim amendment in your own pleadings. और उसमें वो उस दिन भी क्वेश्चन हुआ था कि कौन सी अमेंडमेंट्स की जा सकती हैं विच इज नेसेसरी फॉर जस्ट डिसीजन ऑफ द केस। एडमिशंस जो हैं उसको ना ओमिट किया जा सकता है, न विशिएट किया जा सकता है। एडमिशन है, आपने कोई चीज़ एडमिट की हुई है तो उसको क्लैरिकल मिस्टेक्स हैं या आपको उस वक्त कोई चीज़ पता नहीं थी जो बाद में आपके इल्म में आई है तो वो उसमें दुरुस्त की जा सकती है। तो ऑर्डर 6 रूल 17 के तहत वो अमेंडमेंट्स की जा सकती है। अब फैक्ट्स में 6 रूल 16 17 हो गया। अब जो ऑर्डर 7 है उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ऑर्डर 7 रूल 3 सेज कि व्हेन देयर इज इमूवेबल प्रॉपर्टी तो आपने उसकी डिस्क्रिप्शन देनी है। अगर उसका कोई सर्वे नंबर है तो सर्वे नंबर देना है। आप उसका कोई बाउंड्री, दो किस्म की डिस्क्रिप्शन होती है, एक उसकी है कि आप उसकी बाउंड्रीज दे दें, उसका दुदरबा दे दें, या उसका कोई सर्वे नंबर दे दें। दैट इज सफिशिएंट उसकी, ताकि वो आइडेंटिफाई हो जाए कि आप किस प्रॉपर्टी के बारे में केस कर रहे हैं। सर्वे नंबर के ट्रांसलेशन बता दें। सर्वे नंबर, खसरा नंबर, प्लॉट नंबर,
आपका रेवेन्यू है तो सर्वे नंबर आपका खसरा नंबर होगा, अगर आपका जो है वो है। अच्छा, इसमें एक बड़ी जो एक गलतोलाम चीज़ है वो ये है कि हर खेवट में बहुत सारे खसरा जात होते हैं। यहाँ बहुत सारे तकसीम के दवाजात इस तरह किए जाते हैं कि एक 4 खेवट्स हैं और 4 खेवट्स का एक ही तकसीम का दावा दायर कर दिया गया। इट इज़ रॉन्ग बिकॉज इन ईच एंड एवरी खेवट देर आर डिफरेंट पर्सन। मुमकिन है एक बंदा एक खेवट में मालक है, वो दूसरी में मालक नहीं है, तो वो तकसीम में दूसरी खेवट में नहीं जा सकता। तो सिंगल होल्डिंग की जो तारीफ दी गई हुई है लैंड रेवेन्यू में वो है कि जो बंदा एक खाते में, चाहे उसमें 10 नहीं 100 खसराजात हों, लेकिन वो जो बंदा एक खाते में मालक है वो क्या करता है, वो उस होल्डिंग में मालक होता है और वो हर खेवट का आपने अलग अलग दावा दायर करना है। आप एक को दूसरे में शामिल नहीं कर सकते। तो उसमें खेवट नंबर मालक का होता है, खसरा नंबर वो खेत का होता है। अगर सिंगल है तो वो सर्वे नंबर या खसरा नंबर से डिनोट किया जाता है। तो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन में जब देंगे तो आप खेवट भी देंगे, खतूनी भी देंगे, उसका खसरा नंबर भी देंगे और वो इलाका भी देंगे जहाँ वो वाक़ है। अब एक और चीज़ बड़ी जो यहाँ मैं वाइल सिलेक्टिंग योर रेमेडी, वो ये होता है कि आपने कौन सा सूट करना है। और सूट पोजीशन, एक बंदा कहता है जी मैंने पोजीशन लेके देना मुझे। अब उसके 3-4 किस्म के सूट्स हो सकते हैं। मसलन सबसे पहले अगर आप समझते हैं कि विद इन 6 मंथ आया है एंड ही हैज़ बिन इलीगली डिस्पोजेस्ड, तो आप उसको सेक्शन 9 की रेमेडी में, सेक्शन 9 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में, आप ऑन द बेसिस ऑफ विदाउट टचिंग द टाइटल यू कैन क्लेम द पोजेशन ऑन द बेसिस ऑफ योर पोजेशन। लेकिन उसके लिए यह है कि यू मस्ट बी, दैट पर्सन मस्ट बी dispossessed illegally without due course of law, and the suit must be brought within 6 months under Article 3, I think, Limitation Act का 3 Limitation Act का, कि within 6 months from date of actual dispossession, not from date of knowledge, not from date actual dispossession से आप 6 month में आए। लेकिन उसमें आप अगर मिस कर गए हैं तो फिर पोजेशन के 2 किस्म के सूट हो सकते हैं। एक होते हैं अंडर सेक्शन 8, एक होता है पोजेशन थ्रू पार्टीशन। फिर आपने ये देखना ये है कि आप क्या वो बंदा जिसके खिलाफ आप पोजेशन क्लेम कर रहे हैं वो इसमें कोशेरर भी है। अगर तो वो कोशेरर है तो फिर आप नो कोशेरर कैन बी डिस्पोजेस्ड फ्रॉम अ कॉमन प्रॉपर्टी डिस्पाइट ऑफ हैविंग द शेयर मोर देन इज शेयर, प्रॉपर्टी ऑफ मोर देन इज शेयर अनलेस इट इज विद पार्टीशन। एक बंदा एक खाते में, एक खेवट में 1 कनाल का मालक है, उसने 100 कनाल पे कब्जा किया हुआ है, तो उसको 99 कनाल से आप डिस्पोजेस नहीं कर सकते अगर आपने कब्जा लेना है, अनलेस कि उसकी 1 कनाल साइड पे कर दें। तो ऐसे में आपको सूट फॉर पोजेशन थ्रू पार्टीशन दायर करना पड़ेगा। सूट फॉर पोजेशन थ्रू पार्टीशन दायर। बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है वैसे आपने, मेरा भी इस तरफ ध्यान नहीं गया था कि सूट फॉर पोजेशन 3 किस्म के हो सकते हैं। 2 किस्में तो हमारे जहन में थी। 1, आपको डिस्पोजेस कर देगी गलत तौर पे, और आप विद इन 6 मंथ आ जाते हैं, और चाहे मालिक ने क्यों ना कर दिया, ये ऐसे ही है कि आप किराएदार हैं और मालिक आता है और ज़बरदस्ती आपको निकाल देता है, आप केस कर सकते हैं 9 के नीचे। दूसरी सूरत में आप कहते हैं जो शख्स बैठा हुआ है वो मालिक नहीं है, मैं मालिक हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ टाइटल सेक्शन 8, और आपका बेटर टाइटल है, आप कर सकते हैं। ये जो आपने पार्टीशन वाली बताई है, अब इसमें आप बेटर टाइटल क्लेम नहीं कर रहे होते, सेम इसमें इक्वल टाइटल होता है। इक्वल टाइटल होता है। आपने सिर्फ ये बताना होता है भाई मुझे मेरा भी हिस्सा दिया जाए, और मुझे बताएं कि इसमें जो जजमेंट है वो ये है कि इवन यू आर अ कोशेरर इन अ प्रॉपर्टी बट द पर्सन अगेंस्ट होम यू, आप पूरे के मालिक नहीं हैं। आप 10 कनाल की ज़मीन है, उसमें आप 1 कनाल के मालिक हैं, और आप 1 कनाल स्पेसिफाई करते हैं कि ये 1 कनाल मेरी है, और उस पे जो बंदा बैठा हुआ है ना वो मालिक नहीं है, तो इवन देन यू कैन क्लेम द पोजेशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 8 विदाउट गेटिंग दैट प्रॉपर्टी पार्टीशन। उसमें आप 1 कनाल पे कब्जा ले लें, बेशक आपके बाकी जो कोशेरर हैं वो आके तकसीम करा के आपसे ले लेंगे अगर आपको वो नहीं मिलेगा तो। फॉर दैट पर्सन यू कैन फाइल अ सूट, इवन यू आर नॉट owner of the whole property, you can file a suit under section 8. But if that person who is having the possession of 10 canal and he is actually owner of 5 canal, आप उसे 1 कनाल का कब्जा लेना चाहते हैं, तो वो क्योंकि कोशेरर है
तो आप उससे तकसीम कराए बगैर आपको कब्जा नहीं मिल सकता। बहुत सारे केसेस जो है वो फाइनल स्टेज पे इस वजह से खारिज हो जाते हैं कि भाई ये कोशर है, इनका तकसीम का दावा कराना चाहिए। और तकसीम के दावे में एक चीज़ याद रखें कि तकसीम के दावे में एक तो ये है कि तकसीम के दावाजात के फॉर्म 2 हैं। अगर तो वो प्रॉपर्टी लैंड की डेफिनेशन में आती है, यानी उस पर कंस्ट्रक्शन नहीं हुई है, तो फिर उसकी तकसीम का जो जुरिसडिक्शन है दैट वेस्ट अंडर सेक्शन 172 ऑफ लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 विद द रेवेन्यू कोड्स, आप तहसीलदार के पास उसकी तकसीम के लिए जाएंगे। लेकिन अगर उस पर कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, उसमें कुछ हिस्से पे कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, सब्सटेंशियल कंस्ट्रक्शन नहीं, कुछ हिस्से भी हो चुकी है, तो दैट फॉल्स इन द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी। फिर उसकी तकसीम का इख्तियार जो है वो रेवेन्यू कोड का नहीं है, वो सिविल कोड का है, फिर वो सिविल कोड में आप जाते हैं। अब आपने तमाम को अलग-अलग खेवट के जरिए से पार्टी बनाना है, अलग-अलग खेवट के जरिए से पार्टी बनाना है। एक खेवट में जो है उनको भी पार्टी बनाना, एक नहीं है कि इसकी खेवट 4 खेवट से तो चारों का एक दावा दायर कर दे। आपने हर खेवट का अलग दायर करना है और उसकी अलग ही तकसीम होगी। क्यों? यू कांट कंपेयर दैट पर्सन हु इज़ नॉट अ, क्योंकि बाद में जब तकसीम होती है तो किसी को एक हिस्सा किसी को दूसरा वो तरीका तकसीम में दिया जाता है, तो आप किसी को ये नहीं कह सकते कि आप इस खेवट में मालिक हैं तो आप उस खेवट में चले जाएं। तो उस खेवट की जब तकसीम होगी तो उस खेवट के हर हिस्से में क्योंकि वो शरीक होता है तो उसको कहीं से भी दी जा सकती है। और तीसरी बात कि तमाम जो उसमें को शेयर हैं उनको पार्टी बनाना ज़रूरी है। बहुत सारे केसेस इस वजह से फेल हो जाते हैं कि भाई का तनाज़ा है, 2 भाई हैं, उनका आपस में तनाज़ा हुआ है कि 5 कनाल है कि 10 कनाल है, तो वो 15 कनाल है, तो वो 15 कनाल आपस में तकसीम कराना शुरू कर देते हैं। दोनों भाई आपस में केसेस कर देते हैं पार्टीशन सूरत तो पार्टीशन के, विदाउट सीइंग कि इसमें ये 100 कनाल के और भी मालिक हैं। आप अगर आपस में तकसीम करा लेंगे तो उनको जगह कौन से देगा? तो इसलिए इन दैट इवेंचुअलिटी all the co-sharer, those are necessary parties to be pleaded, ताकि जब आपकी तकसीम हो तो वंस फॉर ऑल वो खेवट पूरी खेवट तकसीम होती है। वो आगे पे एक और बात है कि जब उसका टाइटल का डिस्प्यूट हो तो टाइटल का डिस्प्यूट जब तक डिसाइड नहीं होता उस वक्त तक रेवेन्यू कोड भी वन आर्टिकल आई थिंक सेक्शन 135 या 138 है कि अगर किसी का टाइटल का डिस्प्यूट है तो पहले टाइटल का डिस्प्यूट वो ख़त्म किया जाएगा, उसके बाद उसकी तकसीम की जाएगी। ठीक है जी। इसके बाद आप ऑर्डर, इसमें जो साइनिंग की है कि आपकी प्लेट साइन कौन करेगा, इसके लिए आपको ऑर्डर 3 देखना पड़ेगा। ऑर्डर 3 प्लेट में दो किस्म के सिग्नेचर्स होते हैं। एक होते हैं प्लेट को साइन करना, एक होता है उसको वेरीफाइड ऑन ओथ करना। आई थिंक ऑर्डर 6 रूल 15 है वेरिफिकेशन ऑन ओथ, 615 वेरिफिकेशन ऑन ओथ। और ये भी याद रखें कि इट इज़ मियर इरेगुलरिटी। अब जो लेटेस्ट इसमें जजमेंट्स हैं, लेकिन इरेगुलरिटी को भी जब क्योर करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। मुसलमान में स्टे लेना है और पहले दिन आपकी प्लेट साइन नहीं है तो कोर्ट जब बुलाएगी तो आपको स्टे नहीं मिलेगा, सब इरेगुलरिटी वो क्योर करेगी। तो इसको आपने देखना है कि उसको कौन साइन करेगा। तो उसकी वेरिफिकेशन ऑन ओथ भी तमाम प्लेंटिफ साइन करेंगे और उसकी प्लेट है उसको भी साइन करेंगे, प्लेट भी उसको साइन करेंगे। या कौन करेगा? उनका ऑथराइज्ड पर्सन करेगा। अब ऑथराइज्ड पर्सन कौन है? ऑर्डर 3 रूल 1 में रिप्रेजेंटेटिव का लफ्ज़ है कि कौन उसके रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं। वो बंदा हो सकता है जो जिसके पास उसका जनरल पावर ऑफ टार्नी हो, जनरल नहीं, पावर ऑफ टार्नी हो, वो उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है। अब जो प्लीडर है वो प्लेट साइन करता है, वो प्लेट साइन करता है लेकिन उसको वेरीफाई नहीं करता। वेरिफिकेशन जो है वो प्लेंटिफ ने खुद करनी है। और उसमें भी अब फिर आगे है कि 2 किस्म के होते हैं जिसमें वेरीफाई करने होते हैं। एक तो उसके अपने बिलीफ और नॉलेज से दुरुस्त होते हैं पैराजात, कुछ उसकी इंफॉर्मेशन से दुरुस्त होते हैं। एक जो फैक्ट्स उसने बताए हैं जी मैं मालिक हूँ, उसको अनोथ करेगा जी कि दो द ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ एंड रेस्ट ऑफ पारा इंफॉर्मेशन रिसीव्ड, क्योंकि उसको तो वकील बताता है ना। बाकी जो 3 पैराज होते हैं कि वैल्यू ये बनती है और जुरिसडिक्शन ये बनती है, तो उसको वो फिर ऑन द इंफॉर्मेशन करता है, लेकिन जो उसके फैक्चुअल होते हैं उसको ऑन ओन इंफॉर्मेशन करता है। मेरे ख्याल में सर ये नॉलेज और बिलीफ शायद अलग अलग है, मेरा ये ख्याल यही है वर्ड, ये
देख लें, क्योंकि नॉलेज वो चीज़ है जो मुझे खुद पता है, जी, जी। शायद लॉयर बताता है। जी जी, या ये वो बात आखिरी जो शायद- 3 लीगल पैराज होते हैं उसके बारे में आता है कि ये इंफॉर्मेशन रिसीव्ड होता है, और जो पहले जितने भी फैक्चुअल पैराग्राफ है अब वो ओन नॉलेज से करता है, हाँ, वो ओन नॉलेज से करता है। मैंने यही कहा ना, जी वो अपने नो नॉलेज से करता है, एक नॉलेज वाले हो गए और एक अपॉन इंफॉर्मेशन रिसीव इंफॉर्मेशन रिसीव। ठीक है, बिलीव का जिक्र नहीं, एंड बिलीव एंड बिलीव टू बिलीव एंड बिलीव टू बिलीव। सर इसको पढ़ाएं एक दफा, टू सर इसको जरा हमें समझाया, टू को पढ़े ना, तो वो कहते हैं। कौन सा सर? The person verifying shall specify by reference to the numbered paragraph, जो उसके numbers होंगे, of the pleadings, what he verifies of his own knowledge and what he verifies upon information received and believed to be true। एक होता है उसकी इंफॉर्मेशन रिसीव करना, एक होता है उस पर बिलीव भी करना कि मैंने ये इंफॉर्मेशन रिसीव की है और मैं इसको दुरुस्त मानता हूँ, मानता हूँ, हाँ, ठीक है। ये उसकी बिलीफ है। अब ये क्योंकि वो उसको वकील पे बिलीव करता है तब भी आता है, वकील पे वो बिलीव करता है इसलिए उसको करता है। अब रिकग्नाइज एजेंट में प्लीडर्स में किस तरह वकालनामा होता है वो ऑर्डर 3 रूल 4 में लिखा हुआ है, उस तरीके से आप देखें। अब इसमें कितना टाइम है? भी 3/22 3:22 वहाँ है 10 मिनट। अब है जी कि एक ऑर्डर 7 रूल 6 है, which says that if you are filing the plaint after the period of limitation prescribed for filing of that suit, then you must mention the things which enlarge the time। और उसमें कौन कौन सी होती हैं? फ्रॉड, नॉलेज। सेक्शन 12 से सेक्शन आई थिंक 20 तक है, 19 भी उसमें एक्नॉलेजमेंट भी होती है, एक्नॉलेजमेंट के आप विद इन लिमिटेशन अगर आप एक्नॉलेज कर लेते हैं वो है। सेक्शन 12 से 20 तक वो केसेस है जिसमें आप अपना टाइम को इनलार्ज कर सकते हैं, जिसमें एक लीगल डिसेबिलिटी भी है, लीगल डिसेबिलिटी भी है कि आप डिसेबल थे, माइनर थे, फ्रॉड के ज़रिए से वो चीज़ रोकी है। एक बहुत गलतोलान चीज़ हो ये होती है कि इसके साथ सेक्शन 5 कंडोनेशन ऑफ डिले की दरख्वास्त लगाई जाती है। कंडोनेशन ऑफ डिले की दरख्वास्त जो होते हैं वो अपील, रिव्यू के लिए भी नहीं है, अपील, रिव्यू और एप्लीकेशन के लिए तो है, फाइलिंग ऑफ सूट के लिए नहीं है। फाइलिंग ऑफ सूट को आपने ऑर्डर 7 रूल 6 के तहत वहाँ मेंशन करते हुए कवर करना है कि आपको ये क्यों लिमिटेशन के अंदर आप नहीं दावा दायर कर सकते, और आपने उस लिमिटेशन को करना है, इलाज करना है। और ज़्यादातर यही होता है कि मुझे आज पता चला, मुझे 10 दिन बाद पता चला, मुझे इस तरीके से पता चला, या मुझसे ये चीज़ छुपाई गई, मुझे डिस्क्लोज नहीं की, फ्रॉड सेक्शन 18 ऑफ लिमिटेशन एक्ट है, या यू वॉज डिसेबिलिटी थी, मैं आउट ऑफ कंट्री भी है उसमें, आई थिंक 17 में है कि अगर आप आउट ऑफ कंट्री हैं तो उसमें भी है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपने उसमें मेंशन करनी है। अब ऑर्डर 7 रूल 7 से रिलीफ मस्ट बी स्पेसिफिकली स्टेटेड। अब जो जितने भी रिलीफ है ना वो आपने स्पेसिफिकली स्टेट करने हैं अलग-अलग। ज़रूरी नहीं कि आप हर डिफेंडेंट के खिलाफ सारे रिलीफ मांगें, आप जो रिलीफ जिसके खिलाफ मांगना है आप 10 रिलीफ मांग सकते हैं, जिसमें से 5 एक के खिलाफ मांग सकते हैं, 5 दूसरे के खिलाफ मांग सकते हैं। उन 5 में से 2 रिलीफ 3 डिफेंड नंबर 1, 2, 3 के खिलाफ मांग सकते हैं, और आपको वो रिलीफ अलग-अलग मांगने हैं। ये जॉइंटर ऑफ काजेज ऑफ एक्शन पे आप केस इकट्ठा कर रहे हैं, मसलन कि आपके सेम काज ऑफ एक्शन में आपने बहुत सारे रिलीफ इकट्ठे कर लिए, वाई आपने उसका पोजीशन भी लेना है, आपने उसका रेंट भी लेना है, आपने परमानेंट इंजर्स भी लेना है, आपने मिडिएटिंग इंजर्स भी लेना है, तो सेपरेट सूट नहीं किए जा सकते। इसमें ऑर्डर 2 रूल 2 भी आपको पढ़ना है। ऑर्डर 2 रूल 2 सेज कि आप सारा क्लेम किसी भी एक काज ऑफ एक्शन से जो होगा वो इकट्ठा लाएंगे, लेकिन आप अपना कोई पोर्शन रिलिंग्विश कर सकते हैं, किस लिए कि वो केस किसी कोर्ट की पिक्यूलियर जुरिडिक्शन में आ जाए। आपने 10 लाख लेना है, आप समझते हैं कि नहीं मुझे सिविल कोर्ट में जाना है क्लास 2 के पास, तो आप रिलिंग्विश कर सकते हैं। और वो जो आपने ओमिट कर दिए, जानबूझ के नहीं लिया या रिलिंग्विश कर दिया है, वो आप दोबारा क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप कोई ऐसा रिलिंग्विश करते हैं विद द लीव ऑफ कोर्ट जो अभी तक काज ऑफ एक्शन नहीं बना,
तो वो उसमें कर सकते हैं। मसलन उसकी मिसाल ये दी जा सकती है कि अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा है, उसका भी टाइम नहीं आया, तो आप लिखते हैं कि एट द रेलेवेंट टाइम। अब वो एक्चुअली दैट इज नॉट रिलिंग्विशमेंट, अभी तो वो कॉज ऑफ एक्शन अराइज नहीं हुआ, तो उसमें आप उसमें अभी पैरा ये डाल देते हैं कि एट द रेलेवेंट टाइम आई विल फाइल द सूट, बेसिकली दैट इज नॉट, दैट इज द फ्रेश कॉज ऑफ एक्शन। अब ऑर्डर 7 में दो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ऑर्डर 7 रूल 10 एंड ऑर्डर 7 रूल 11। अब इसके साथ 710 है, रिटर्न प्लेट है, वो मैंने आपको अर्ज किया है कि उसमें आपने कोर्ट की जुरिडिक्शन और कोर्ट का नेम है, अगर आप गलत कोर्ट में देंगे तो वो रिटर्न हो जाएगी। 711 में आपने उसकी 4 ग्राउंड है रिजेक्शन अपलेंट के, जिसमें से 2 जो हैं वो कोर्ट फीस के बारे में है और एक कॉज ऑफ एक्शन के बारे में, एक बार्ड बाई लॉ। बार्ड बाई लॉ ये बड़ा लंबा सब्जेक्ट है, इसमें लिमिटेशन में भी बार्ड हो सकता है, रेस जुडिकाटा भी हो सकता है, बार्ड बाई एनी अदर लॉ भी हो सकता है। कॉज ऑफ एक्शन जो है उसमें बेसिक लॉ ये है कि आपने ये देखना है कि आपकी प्लेंट जो है वो इट डज डिस्क्लोज कॉज ऑफ एक्शन और डजंट डिस्क्लोज कॉज ऑफ एक्शन। आपकी सिर्फ प्लेंट देखी जाती है कि कॉज ऑफ एक्शन है नहीं। अब जो आखिरी बात करके इसको ख़त्म करते हैं, टेरिटोरियल जुरिडिक्शन का पैरा लिखेंगे कि इस कोर्ट को क्यों जुरिडिक्शन है, वो मैंने आपको 16 से 20 बताया है कि आपने ये लिखना है कि 16 से 20 तक आप देखेंगे कि 16 और 20 में इमूल प्रॉपर्टी है, अगर तो कॉज ऑफ एक्शन है, डिफेंडेंट ये गलत लाम नहीं करना कि एज प्लेंटिफ डिजायर्ड विद द टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ दिस कोर्ट, हैज दिस कोर्ट हैज, क्योंकि प्लेंटिफ की रहश होना, रेजिडेंस होना, इट डजंट कन्फर जुरिडिक्शन अपॉन एनी कोर्ट। अब जो होता है दूसरा पैरा, वो है वैल्यूएशन ऑफ ए सूट। वैल्यूएशन ऑफ ए सूट में आपको 2 हैं, और सेक्शन 3 ऑफ सूट वैल्यूएशन एक्ट है और 7 और 8 भी है, और उसका स्केड्यूल 2 भी है। स्केड्यूल 2 में वो है कुछ है जिसमें फिक्स कोर्ट फीस है, मसलन 10 रुपये है सूट फॉर पार्टीशन में, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 99% केसेस आपकी उस पर कवर हो जाएंगे, वो है सेक्शन 7 ऑफ कोर्ट फी है। उसमें हर की अलग अलग जुरिडिक्शन दी गई है। ये बात कह देना कि ये जो इस तरीके से लिखते हैं कि वैल्यू ऑफ सूट फॉर द पर्पज ऑफ कोर्ट फी एंड जुरिडिक्शन, फॉर द पर्पज ऑफ कोर्ट फी एंड जुरिडिक्शन द मैक्सिमम कोर्ट फी ऑफ ₹3000 लिखते हैं या 3450 हैज बीन फिक्स्ड, इट इज टोटली रॉन्ग। आपने इसमें जो आपने जो लिखना है वो पैरा इस तरीके से लिखना है,